Good morning, students. Today we are going to study about the equations of motion. Okay, so Newton, Sir Isaac Newton, he was a scientist. He has given three equations to explain the motion of any object. Right? उन्होंने किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए तीन इक्वेशंस दी थी. And what were those equations that we are going to see now? Okay. So these equations were, the first equation was V is equal to U plus AT, where V is the final velocity, U is the initial velocity, A is the acceleration, and T is the time. So this is the first equation in which V is the final velocity, U is the initial velocity, A is the acceleration, and T is the time. The second equation of motion is S is equal to ut plus half at square, where again this u is initial velocity, t is the time, half is obviously a constant, a is acceleration, t is time, and s is displacement. Displacement को हम s से denote कर रहे हैं, right? So this is equation number 1. This is equation number 2. The third equation of motion is v square is equal to u square plus 2as, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं that v square minus u square is equal to 2as, right? Where v square, v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, and s is the displacement. So final velocity, initial velocity, acceleration or displacement. So these three are the equations with the help of which we can explain the motion of any object in any direction, right? Now we are going to solve some of the numericals that are based on these three equations, so that we can understand these the utilization of these three equations in a better way. Okay. Now students, we are going to solve this numerical that is based on the equations of motion. Okay. A train starting from rest attains a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर. एक ट्रेन है जो कि रेस्ट में है, राइट? आपको पता है कि जब वो ट्रेन रेस्ट में है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 किलोमीटर पर आवर. अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर, और इसके लिए उसको टाइम कितना लगा? 5 मिनट्स, राइट? Assuming that the acceleration is uniform, find acceleration. अगर यूनिफॉर्म है तो हमको क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन की वैल्यू, और इसके अलावा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग द वेलोसिटी. मतलब हमको डिस्टेंस, या हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है फॉर अटेनिंग दैट वेलोसिटी. तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, वी नो दैट सबसे पहले तो हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं. हमको पता है एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला a is equal to v minus u upon t, right? That is the rate of change of velocity. Now students, here there is one thing. यहाँ जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दी है, और जो टाइम है वो मिनट में दिया है, राइट? तो हमको इस मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. So 1 hour is equal to 60 minutes, right? और 1 minute is equal to 1/60 hour, और 5 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 5/60 आवर, राइट? तो हम इस टाइम को लिख सकते हैं 5/60 आवर्स, राइट? नाउ ऑन पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज,
इन दिस फॉर्मूला व्हाट डू वी गेट, v हो गया हमारे पास 72 माइनस u हो गया 0 डिवाइडेड बाय टाइम हो गया 5/60, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 72/5 और ये जो 60 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 60 न्यूमरेटर में आ गया, राइट। नाउ 5 से हमने इसको कैंसिल किया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 72 मल्टीप्लाई 12, व्हाट डू वी गेट 864 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, हमारे पास a की वैल्यू आ गई, अब हमको इस s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो इस s के लिए हमारे पास फॉर्मूला है दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट। v स्क्वायर की जगह v स्क्वायर की वैल्यू दैट इज 72 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर हो गया 0 प्लस 2 इंटू a की जगह a की वैल्यू दैट इज 864 इंटू s हमको फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने s को एज इट इज लिख दिया, राइट। अब हम सॉल्व करेंगे, 72 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4, 7 दूनी 7 49, 5184 इज इक्वल टू 1728, राइट। और यहां से s इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5184 डिवाइडेड बाय 1728 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करते हैं, 1728 3 जा 8 या 24, 3 दूनी 6, 4 5, 7 या 21, 3 एकम 3, 4 5, राइट। तो ये आ गया 3 टाइम्स, राइट। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई, डिस्प्लेसमेंट इज 3 किलोमीटर। सो इन दिस वे with the help of third equation of motion we have find out the value of s, that is the displacement, and the acceleration, that is 864 kilometer per hour square, right. Now we will solve some more numericals that are based on the equations of motion, okay. This is the second question that is based on the equations of motion. Okay, we will read this question. A car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour, right? आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में कि एक कार है जो कि एक्सेलरेट होती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 18 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी हो गई 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स, और इस एक्सेलरेशन के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड्स। तो हमको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन दैट इज a, और एक और चीज कैलकुलेट करनी है दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। कार उस टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, हमको उस s की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, राइट। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t. Now there is one thing that we have to keep in mind here, that the u and v are given to us in kilometer per hour, right? And जो टाइम है वो हमको सेकेंड में दिया है, तो हमको u और v को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स वी नो दैट जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और सिमिलरली 36 इंटू 5/18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहां से हमारे पास u और v की वैल्यू आ गई मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में। ऑन पुटिंग दिस वैल्यूज व्हाट डू वी गेट, u 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय t हो गया 5 सेकेंड, 5/5 एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at square. So we will just simply put the values of all these variables in the formula and solve it. u की वैल्यू हो गई 5, t हो गया यहाँ पे 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हो गया 1 और टाइम हो गया 5 का स्क्वायर. 5 5 जा 25 प्लस 5 का स्क्वायर इज 25 by 2. This will be 50 plus 25 by 2, that is 75 by 2, that is 37.5 किलोमीटर. तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जाएगा 37.5 किलोमीटर, सॉरी मीटर, राइट? जब सारी यूनिट्स मीटर में हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो भी काय में होगा, मीटर में. सो in this way we can find out the value of acceleration and displacement with the help of second equation of motion, right? In the previous question we have solved with the help of third equation of motion. In this question we have solved with the second equation of motion. Now we will do one more numerical that is based on this pattern only. Now we will solve the third question. The brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in opposite direction. आप एक कार में बैठे हैं, कार चला रहे हैं और जैसे ही आपने ब्रेक्स अप्लाई किए तो जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है. कितना? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और सिंस उसका डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए हमने उसको माइनस में लिया, राइट? टू द मोशन इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप. कार को 2 सेकेंड का टाइम लग रहा है स्टॉप होने में और जब वो स्टॉप हो रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड, राइट? After the application of brakes, then calculate the distance it travels during this time. तो हमको कैलकुलेट करना है कि उसको स्टॉप होने में बेसिकली कितना टाइम लगा. That we have to calculate, right? Is calculate the distance it travels during this time. हमको ये फाइंड आउट करना है कि उसको स्टॉप होने से पहले उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है. तो S पता करने के लिए सबसे पहले हमको U पता होना चाहिए, है ना? दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी. वो तो हमको पता ही नहीं है तो सबसे पहले हम U निकालेंगे. फॉर दिस वी नो दैट V इज इक्वल टू, दिस इज V इज इक्वल टू U प्लस AT, राइट? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. यहाँ पे हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं जो हमको पता है. V हो गया 0, U हमको फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन हो गया -6 और टाइम हो गया 2. So from here we will get U is equal to 12 meter, right? मीटर पर सेकेंड. जो इनिशियल वेलोसिटी आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई? 12 मीटर पर सेकेंड. Now we have to find out the displacement and the formula for which is S is equal to ut plus half at square. U हमको U is 12, T हो गया 2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हो गया -6 और T स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर. सो 12 2 जा 24 प्लस 1/2 इंटू -6 इंटू 4 दैट इज 24 माइनस 24/2 ये हो गया 12. तो 24 minus 12 that is 12 meter. So the displacement is find to be 12 meter, right? इसका मतलब वो जो कार है वो स्टॉप होने से पहले 12 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी, right? So I hope the equations of motion and the numericals that are based on the equations of motion are clear to all of you. Now we will proceed to our next topic, that is the last topic of this chapter is uniform
सर्क्यूलर मोशन। तो ऑब्वियसली हमको नाम से ही समझ में आ रहा है दैट द ऑब्जेक्ट इज possessing द मोशन इन सर्कुलर पाथ, राइट। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तब उसका जो मोशन होगा दैट इज कंसिडर्ड टू बी द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, सपोज हम किसी सर्कुलर पार्क में मूव कर रहे हैं और जो हमारी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर हम इक्वल टाइम में इक्वल आर्क लेंथ कवर कर रहे हैं तो हमारा जो मोशन होगा दैट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जब हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो जो डिस्टेंस होगी वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो सकती है, राइट। अगर हमको यहाँ से यहाँ तक, अगर हम स्टार्टिंग में यहाँ थे और कुछ टाइम बाद यहाँ हैं और अगर मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो मैं स्केल की हेल्प से तो कर नहीं सकता हूँ, है ना। अगर मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो मुझे एंगल के फॉर्म में करनी पड़ेगी कि मैं कितना डिग्री मूव किया, राइट। सो जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एंगल के फॉर्म में होता है और इसलिए हम उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एंगल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय थीटा। और इसको मेजर हम करते हैं रेडियन में। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है जब भी कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो उसके मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब अगर आप 5 मिनट में 90 डिग्री मूव कर रहे हो तो आपको 10 मिनट में 180 डिग्री मूव करना है, 15 मिनट में 270 और देन 20 मिनट में 360। तो जब हम इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं इक्वल टाइम में तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। और जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज इन द फॉर्म ऑफ थीटा और जो थीटा है उसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन। ओके, नाउ ऑब्वियसली जब आप मूव कर रहे हो तो आपकी कुछ वेलोसिटी होगी और आपकी जो वेलोसिटी होगी उसको भी हम एंगल के फॉर्म में मेजर करेंगे दैट इज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कॉल्ड एज थीटा और ये हो जाएगा टाइम और वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी थीटा की यूनिट रेडियन और टाइम की यूनिट सेकेंड। So this is the unit of angular velocity. Now the last topic is angular acceleration. Obviously students we know that linear acceleration क्या होता है, velocity upon time. तो angular acceleration क्या हो जाएगा, angular velocity upon time. Angular acceleration को हम डिनोट करते हैं अल्फा से, angular velocity ओमेगा और टाइम t. So this is the formula for angular acceleration और इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. So this is the SI unit of angular acceleration. Okay. So that's all for today's class, students. From next class we will start the next chapter. Thank you.